हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 की समरी को लेकर, जिसकी बुक का नाम है फ्लैमिंगो और चैप्टर है द इंटरव्यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो तनिष्का, क्या तुम तैयार हो? Yes, I'm ready. सो नाउ लेट्स स्टार्ट। The interview summary is a simplified version of the chapter using easy language. This chapter is an excerpt taken from the Penguin Book of Interviews. It is written by Christopher Sylvester. In this chapter, the author talks about the technique of interview as a new way of interrogating. साक्षात्कार सारांश आसान भाषा का उपयोग करते हुए अध्याय का एक सरलीकृत संस्करण है। यह अध्याय द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से लिया गया एक अंश है। इसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। इस अध्याय में लेखक पूछताछ के नए तरीके के रूप में साक्षात्कार की तकनीक के बारे में बात करता है। He talks about it with reference to the field of journalism. Moreover, he also discusses the importance of this new technique. He goes on to state how the interview has become a vital arena in everyone's lives, regardless of the class, literacy, or anything. वह पत्रकारिता के क्षेत्र के संदर्भ में इस बारे में बात करते हैं। इसके अलावा वह इस नई तकनीक के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे साक्षात्कार हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, चाहे वह किसी भी वर्ग, साक्षरता या कुछ भी हो। We learn about the opinions of many celebrities concerning an interview. Thus, it teaches us about the functions, methods, and merits of an interview. Moreover, the author also incorporates an excerpt from an interview with the notorious writer Umberto Eco. This part allows us to get a glimpse at his literary method. हम एक इंटरव्यू के संबंध में कई मशहूर हस्तियों की राय के बारे में जानते हैं। इस प्रकार यह हमें साक्षात्कार के कार्यों, विधियों और गुणों के बारे में सिखाता है। इसके अलावा लेखक ने कुख्यात लेखक अम्बर्टो इको के साथ एक साक्षात्कार का एक अंश भी शामिल किया है। यह भाग हमें उनकी साहित्यिक पद्धति की एक झलक देखने का अवसर देता है। The chapter starts with the author introducing us to the method of an interview. We learn that it is pretty common in journalism and its origin dates back to 130 years before. He expresses that, unsurprisingly, various people carry different opinions about the concept of the interview and its uses. अध्याय की शुरुआत लेखक द्वारा हमें साक्षात्कार की पद्धति से परिचित कराने से होती है। हमें पता चला है कि यह पत्रकारिता में काफ़ी आम है और इसकी उत्पत्ति 130 साल पहले हुई थी। वे व्यक्त करते हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है कि साक्षात्कार की अवधारणा और इसके उपयोग के बारे में विभिन्न लोग अलग-अलग राय रखते हैं। Some people think of it very highly, while others cannot bear giving an interview. The chapter tells us that an interview can make a lasting impression. Moreover, as per an old saying, when we make perceptions about a particular person, the original identity of their soul is taken away. We learn how the most popular celebrities have criticized interviews. कुछ लोग इसे बहुत ऊंचा समझते हैं, जबकि कुछ लोग इंटरव्यू देना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अध्याय हमें बताता है कि एक साक्षात्कार एक स्थायी प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा एक पुरानी कहावत के अनुसार, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में धारणा बनाते हैं, तो उनकी आत्मा की मूल पहचान छीन ली जाती है। हम सीखते हैं कि कैसे सबसे लोकप्रिय हस्तियों ने साक्षात्कारों की आलोचना की है। Similarly, Rudyard Kipling's wife writes in her diary about how two reporters in Boston ruined her. He thinks of interviewing as an assault. Moreover, he even believes that this crime should have a punishment. Further, Kipling is of thinking that no respectable person asks for or gives an interview. इसी तरह रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे बॉस्टन में दो पत्रकारों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। वह इंटरव्यू को हमला मानता है, और तो और उनका तो यहाँ तक मानना है कि इस अपराध के लिए सजा होनी चाहिए।
इसके अलावा किपलिंग की सोच है कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति साक्षात्कार नहीं मांगता या नहीं देता। Moreover, this chapter also contains an excerpt from an interview between Mukund, belonging to the Hindu newspaper, and, and Umberto Eco. Eco is a professor at the University of Bologna in Italy. He has a daunting status as a scholar for his philosophies on semiotics, the study of science, literary interpretations, and medieval aesthetics before taking up writing fiction. इसके अलावा इस अध्याय में द हिंदू न्यूज़पेपर से जुड़े मुकुंद और अम्बर्टो इको के बीच एक साक्षात्कार का एक अंश भी शामिल है। इको इटली के बोलगेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। कथा लेखन शुरू करने से पहले लाक्षणिकता यानी कि संकेतों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर उनके दर्शन के लिए एक विद्वान के रूप में उनकी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। In the interview, we see it centers on his successful novel, The Name of the Rose. His novel sold more than 10 million copies. Mukund begins by asking him how he manages to do such different things. Umberto replies, saying he is doing the same thing further. He goes on to justify his book that revolve around peace and non-violence. साक्षात्कार में हम देखते हैं कि यह उनके सफल उपन्यास द नेम ऑफ द रोज पर केंद्रित है। उनके उपन्यास की 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी है, यानी कि उनकी कॉपीज। मुकुंद ने उससे यह पूछना शुरू किया कि वह इस तरह की अलग-अलग चीजें कैसे कर लेता है। अम्बर्टो ने उत्तर देते हुए कहा कि वह भी यही काम कर रहा है। इसके अलावा वह अपनी किताबों को सही ठहराता है, जो शांति और अहिंसा के इर्द-गिर्द घूमती है। We learn that Umberto classifies himself as an academic scholar. He attends various academic conferences throughout the week and writes novels on Sundays. Moreover, he expresses that other considering him as a novelist and not scholar does not affect him at all. He agrees it is rather tough to influence millions of people with academic work. हमें पता चला है कि अम्बर्टो खुद को एक अकादमिक विद्वान के रूप में वर्गीकृत करता है। वह पूरे सप्ताह विभिन्न शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेते हैं और रविवार को उपन्यास लिखते हैं। इसके अलावा वे व्यक्त करते हैं कि अन्य लोग उन्हें विद्वान नहीं बल्कि एक उपन्यासकार मानते हैं। इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह इस बात से सहमत है कि शैक्षणिक कार्यों से लाखों लोगों को प्रभावित करना काफी कठिन है। Moreover, we also learn how he believes that our lives have empty spaces like the ones in atoms. He refers to them as interstices and admits that he does most of his productive work in the course of that time. Speaking about his novel, he remarks that it is not an easy read. इसके अलावा हम यह भी सीखते हैं कि वह कैसे मानते हैं कि हमारे जीवन में परमाणुओं की तरह खाली स्थान है। वह उन्हें इंटरस्टिस के रूप में संदर्भित करता है और स्वीकार करता है कि वह अपना अधिकांश उत्पादक कार्य उस समय के दौरान करता है। अपने उपन्यास के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इसे पढ़ना आसान नहीं है। It has got a detective feature to it alongside metaphysics, theology, and medieval history. Similarly, he thinks that if he wrote the novel 10 years earlier or later, it would not have achieved the same success. Thus, the reason for the success of the novel remains a mystery. इसमें तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास के साथ-साथ एक जासूसी विशेषता भी है। इसी तरह उनका मानना है कि अगर उन्होंने उपन्यास 10 साल पहले या बाद में लिखा होता तो उसे उतनी सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार उपन्यास की सफलता का कारण एक रहस्य बना हुआ है। To sum up the interview summary, we learn how many people differ when it comes to interviews. Nonetheless, they are very
interesting and informative as seen from the Umberto's interview. संक्षेप में साक्षात्कार सारांश से हम सीखते हैं कि जब साक्षात्कार की बात आती है तो कितने लोग भिन्न होते हैं, फिर भी वे बहुत दिलचस्प और जानकारीपूर्ण होते हैं, जैसे कि अम्बर्टो के साक्षात्कार से देखा जा सकता है। तो गाइस अभी आपने देखा द इंटरव्यू की समरी, जो कि फ्लेमिंगो बुक से ली गई थी। और एग्ज़ाम टाइम है, और आप अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट पेपर्स अगर आपको डाउनलोड करने हो और प्रैक्टिस करनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर उस लिंक पे क्लिक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।